I reached a point where I was like, now is the time to make the decision. Admission के time पे ना उसपे लिखा होता है English. People think that you're going to study grammar है, like what's past tense, what's present tense. You don't study that. किसको पोइट्री का शौक है, मुझे तो पोइट्री लिखनी नहीं आती, मुझे पोइट्री समझ नहीं आती, ठीक है. लोग कहते हैं इसको करने के बाद टीचर बनोगी क्या. इंडोनेशियन कॉन्सुलेट में इतने हैं कि लाइक इट्स लाइक मेरा अपना ननियाल है यहाँ पे, ठीक है ना. इट्स लाइक दैट. करंटली आई कैन स्पीक मोर देन 4, लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश, उर्दू एंड इंडोनेशियन विच इज़ माई मदर टंग, एंड जर्मन. KU के अंदर you get exposure, a lot of exposure, because I knew what my real passion was, and it was literature all along. मैंने तो books पढ़ी हैं, I'm just only going to read books. That's not how it is. You read books and then you apply it to real life, ठीक है ना. But for the literature, most of the people who go for literature is those who are passionate about it, ठीक है. Assalamu alaikum. I am your host Nabiha Shah Siddiqui and today we are back with another exciting episode. आज हमारी गुफ्तगू इंग्लिश डिपार्टमेंट के बारे में है, क्योंकि जनरली लोगों को या स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हम इंग्लिश के डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे क्या. तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हमने बुलाया है रमशा हुसैन खान. रमशा कराची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी कीन आइस स्केटर. लेट्स मीट रमशा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आप आई. You're welcome, and I'm great. I'm happy to be here, and I think as a student of Karachi University, we all should be sharing our experiences and stuff so that we are aware of what we are doing, and the student life is not just in books, and we have real life experiences as well. So I'm glad that we are doing this today. थैंक यू सो मच. तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट मेरा सबसे क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट वाज योर इनिशियल जर्नी. कहाँ से तुमने अपनी बेसिक एजुकेशन ली और किस तरीके से तुम इस स्टेप पे आई हो कि यू विल टेक लिटरेचर एज योर बैचलर्स डिग्री. Okay, it all I think starts from my school, and I have always my family, my parents have always encouraged me to read books and stuff. So I have been into that. My school has always encouraged, and they have a great library. Had a great library in school, and we studied literature deeply, even to the point they had us take private exams for the board exams as well for the literature. I was studying in Aachen board. My school was Civilizations Public School, and it is there where I developed the love for my literature. I was doing science. I took science as my 9th and 10th, ठीक है ना, but I still had literature as my private subject. And there I realized that I'm not interested in the science and maths. मतलब, I remember it was my, I think, 9th or 10th mock exam, and I was doing the maths. You know how we used to do, first we used to do with pencil and then we used to do with pen, obviously. I did the whole paper with pencil and I still had no idea what I was doing. Half of the paper was like, but I was like, you know what, I gave it back to my teacher because I was not interested in that, because I knew what my real passion was, and it was literature all along. So that's after my second year, after my 10th grade, after finishing my school, I decided that I wanted to pursue literature. So after that I went to Habib College, ठीक है ना, Habib Girls School, and for my higher education. And like I think it's a bit, when you're in board exams phase, you are told by the society and everyone that science is the best option, ठीक है ना. That's the thing. So me being me, I was like, okay, ठीक है, if I have to study literature, I'll just go for the literature after my second year, ठीक है. So I just went there and I did my interview and everything was great, and they asked me, okay, which subject do you plan to do? So I was like, I guess go for science, but they're like, you are much more interested yourself, you say yourself that you're interested in literature and social sciences, so why are you taking science? I'm like, I mean, yahi to karna chahiye, that's what you're supposed to do. So like, no, they counseled me, and they counseled my parents as well, and my parents have always been supportive. They were like open to all of that. So they were like, okay, we also feel like choosing
क्या कहते हैं social sciences as humanities as my first year and second year is the best option. And to be very honest, I'm very happy with that my decision. I never regretted my decision for that, neither for the ninth and 10th as science. I'm glad that I took that because I have information of general knowledge hoti na कि like people are say once you have to study science तक आगे भी I have the basic, so I was glad with that. And then I studied my continued my literature as a private student when I was in Habib as well, and for the Dawan board, and from there I went to Karachi University. मोस्ट अभी जैसे हम बोल रही थी कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि साइंस की डिग्री है, साइंस पढ़ लेना चाहिए क्योंकि सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, और दूसरा ये होता है कि साइंस आपने पढ़ी, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, आप हर जगह जा सकते हो. अगर आपने बायो और मैथ्स दोनों पढ़ ली, यू कैन ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड यू कैन गो फॉर मेडिकल एज वेल. और साइंस पढ़ के आप अपने इंटर के बाद स्विच भी कर सकते हो कि आपको ह्यूमैनिटीज वगैरह पढ़नी है तो आप सब पढ़ सकते हो. तो फिर KU की क्या जर्नी थी कि किस तरीके से, और यू स्पेसिफिकली ऑप्ट फॉर KU या और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज थी जहाँ से तुम लिटरेचर पढ़ सकती थी? Okay, so I always knew that I wanted to go for literature, like I mentioned earlier. Lekin, so when I finished my second year, I was searching for the best universities in Karachi and even Pakistan for literature. And there were not many universities in Pakistan, and even in Pakistan, and specifically in Karachi, there were like Karachi University itself, and there was another university. ठीक है. And so I was like, is Karachi University the best option itself or not? So I researched, I talked to a few professors, I talked to a few people of my own that I knew. I researched on it, ठीक है ना. I had few seniors from Karachi University as well, so I talked to them, and I realized I gave my interview and my test in both the universities, and I passed in both of them. But I reached a point where I was like, now is the time to make the decision. So what I did was after my research, I realized that Karachi University has the best course that is there and the best teachers in the field of literature. And not only that, we are allowed to have literature and linguistics for their masters. So nice. It's not just limited to one degree. Once you complete your bachelor's. सिर्फ लिटरेचर नहीं है, you have लैंग्वेज भी होगा ना. तीन मेजर्स हैं या दो मेजर्स हैं? दो मेजर्स हैं, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स. या in for the master's degree. For the master's. Or you can there's also like एक दफ़ा आपने literature कर लिया, you can apply again for linguistics if you want to do masters, or you can just do PhD वगैरह just लेकिन next degree पे आप आ जाओ. But you have the opportunity, right? So that's something that KU also offers. सही है. अभी तुम बोल रही थी कि इंटरव्यू भी लेते हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो देयर इज़ नो इंटरव्यू. तो स्पेसिफिकली इंग्लिश डिपार्टमेंट में आपको लेने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है? नहीं, इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए कोई कहते हैं इंटरव्यू नहीं होता. दिस मेरिट बेस्ड, ठीक है. यू गेट ओपन मेरिट होता है. यू गेट अ लिस्ट एडमिशन पे जो प्रोसेस हमारे पता है, ठीक है ना. फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट जिनको लाइक दे अप्लाई, दे गेट अ लिस्ट ऑफ percentage, ठीक है. You apply that, and if you are qualifying in that field, you can definitely go for that. इस तरह से सही है. फिर उसके बाद तुम्हारा एडमिशन हो गया BS इंग्लिश में या इंग्लिश डिपार्टमेंट में. तो कैन यू टेल अस अबाउट सम कोर्स कंटेंट और बेसिक इन्फो के अगर एक बच्चा जो है वो डिग्री कर रहा है इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है उसको? सिर्फ लिटरेचर नहीं है या और भी चीज़ें हैं? नहीं. आई थिंक the very big misconception for the students who come to university for the literature English degree, ठीक है. what the admission के time पे ना उसमें लिखा होता है English. People think that you're going to study grammar here, like what's past tense, what's present tense. You don't study that. If you want to study what's past tense, what's adverb, what's adjective, you go for your school again, okay. You study all that in your school and in your college, ठीक है ना. You don't come to higher education in your university for any of that, even if it's any field, ठीक है ना. If you're going for science field or something, you won't go there कि अच्छा if you're going for chemistry, ठीक है, you won't ask कि अच्छा chemical bonds क्या होते हैं. That's not the option. That's not what they're teaching, ठीक है. They will teach you कि chemical bonds क्या होता क्या, कौन से होते हैं. That's what they will teach you. ये थोड़ी होता है कि definition बताएं और इस तरह से. You don't do that. And what we study in literature
once we get admission is, first of all we get basic writing and stuff, ठीक है, we get introduction to poetry, we get introduction to the drama, and we get introduction to novel. These are the three things that are main. Drama or play, drama and play is the same फिर thing. poetry or Poetry, prose, ठीक है ना, and then वो novels, तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं. इस तरह से. This is the main thing, ठीक है. And इसके अलावा there's another, like you know, when you are in studying in the university, the first 2 years, ठीक है ना, उसके अंदर आपको minors भी लेने पड़ते हैं. So you have, when you are in social science, if you are in English, you have social sciences opportunity, which are a lot, ठीक है. You can choose from a lot of subjects. There's like 10 plus something subjects that you can take for minors. And I think it is very important कि आप जो है कौन सा subject choose करते हैं for your minors as well, which will, you know, be the best combination for your degree when you graduate as well. ठीक है. For example, I chose international relations and mass communication when I was in my first and second year, and I believe that actually is a good thing for my degree when I graduate, and currently as well, because I am जो आगे scope होता है, it is also very much connected, which I will discuss further ahead as well. सही. कोर्स कंटेंट की बात हो गई कि हमारा जो है, फिर उसके बाद अगर हम लोग जैसे उसने BS कर लिया, फिर उसके बाद मास्टर्स में उसके पास लिंग्विस्टिक और लिटरेचर है, तो उसको स्पेशलाइजेशन में विच विल बी द बेटर वन, किस तरीके से कौन सी चीज़ जो है उसको लेनी चाहिए, और या इंटरेस्ट पे बेस करता है? या इट ऑनेस्टली देखो, people who get admission in literature degree, ठीक है ना, जो हमारी ये है, इसके अंदर it's not only for the fact कि हम किसको पोइट्री का शौक़ है, मुझे तो पोइट्री लिखनी नहीं आती, मुझे पोइट्री समझ नहीं आती, ठीक है, दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, ठीक है. यू ऑल्सो स्टडी, दे विल टीच यू कि पोइट्री है क्या, ठीक है ना. बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है. ये नहीं है कि आपको बस बोलना शुरू कर दें कि आप जॉन कीट्स पढ़ना शुरू कर दें, आप जो है क्या कहते हैं शैले को पढ़ना शुरू कर दें. दैट्स एकदम से आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, वो बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो आपको कराएंगे. बट उसके अंदर आगे ये होगा कि रीडिंग इज़ मस्ट, ठीक है, फॉर एस लिटरेचर स्टूडेंट आपको रीडिंग मस्ट होती है. एंड वंस यू डू दैट, आगे जाके आपके पास क्रिटिकल वो भी पढ़ते हैं आप, ठीक है, क्रिटिकल अप्रोचेस, क्रिटिकल एनालिसिस के एक टेक्स्ट को किस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है. एंड वंस यू डू दैट, वंस यू क्रॉस योर बैचलर्स, ठीक है ना, एंड इनटू मास्टर्स, ठीक है. लिंग्विस्टिक्स इज़ गुड फॉर कहते हैं इफ़ यू वांट फॉर योर क्या कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है ना. इट्स गुड इफ़ यू कैन गेट गुड जॉब्स इन दैट, ठीक है. एंड देर आर वेरी, यू नो, उसके लिए उस लिहाज से देर इज़ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लिंग्विस्ट, ठीक है. यू कैन गो फॉर टीचिंग पर्पसेज, यू कैन गो फॉर मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल. बट फॉर द लिटरेचर, most of the people who go for literature is those who are passionate about it, ठीक है, who are interested in the art itself, ठीक है. You definitely have opportunities for the for work and stuff in literature as well, but most of it is like, you know, passion की बात होती है कि यार कितना शौक है, क्योंकि लिटरेचर में रीडिंग होती है, itself रीडिंग. और अगर जैसे अगर मैं पूछूं कि आसान लफ्ज़ों में कि लिंग्विस्टिक होता क्या है और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिटरेचर, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ बताओ उसकी, कि बेसिक मीनिंग बताओ कि लिंग्विस्टिक होता क्या है. ओके, सो लिंग्विस्टिक्स इज़ लाइक, हमें लगता है कि देखो इट्स नॉट ग्रामर इन दिस सेल्फ, बट इट्स टीचेस यू व्हाट लैंग्वेज के किस तरह से पढ़. फॉर एग्जांपल दे विल आल्सो टीच यू के, फॉर एग्जांपल डॉग, ठीक है ना, इट्स अ वर्ड डॉग, सो DOG, तो फिर D, तो इसमें लाइक यू नो दिस इज साउंड्स, यू विल स्टडी अबाउट साउंड्स, यू नो, इफ़ यू लुक एट द डिक्शनरीज, ठीक है ना, देयर इज़ अ प्रॉपर वर्ड एंड उसके साथ में ब्रैकेट में हाफ कट होके लिखा हुआ होता है, तो किस तरीके से प्रोनाउंस किस तरह किया जाएगा और कितने उसके अंदर टोन्स आ रही हैं, ठीक है ना, लैंग्वेजेस, ठीक है, देयर इज़ अ ब्रेक, ठीक है. सो इस तरह से ये आता है. दिस इज़ व्हाट यू स्टडी इन लिंग्विस्टिक्स, एंड इसके आगे भी बहुत इन डेप्थ डिटेल होती है. दिस इज़ वेरी ऊपर से मैं बता रही हूँ, ठीक है ना. वंस यू गो इनटू दैट देयर इज़ अ लॉट,
and it has lots of opportunities and scope in the market as well. वो होगा ना कि फॉर्मल टोन क्या होती है, लाइक हम लोग ये सब लिंग्विस्टिक में सीखते होंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह की टोन यूज हाँ, होगी, ये भी ये होता सारी है। चीज़ें होती होंगी। ये भी होता है। सही। फिर उसके अलावा कि अगर किस BS इंग्लिश की करियर और फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी? ओके, यू कैन इंग्लिश इटसेल्फ की ना आपकी ना वो होती है कि you can go for publishing houses, best option you had as you can, the most I think open the understood as well कि लोग कहते हैं इसको करने के बाद टीचर बनोगी क्या, that's not the only thing, ठीक है ना. यार you can go for teaching. linguistics जो पढ़ते हैं उनके पास ज़्यादा opportunities आती है because literature itself in Karachi, in Pakistan itself, कराची पाकिस्तान दोनों की बात कर लें हम तो लिटरेचर इतना नहीं पढ़ाया जाता स्कूल्स एंड उसमें, ठीक है. सो देयर इज़ अ बिट लिमिटेड टू दैट, बट बाहर इन अब्रॉड, ठीक है ना, देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना. यू कैन गो देयर फॉर टीचिंग एंड दे कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट इन दैट एज वेल, ठीक है. एंड टीचिंग की आपकी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं होता, टीचिंग यू हैव इन स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, देयर इज कोर्सेज लेवल एंड यू नो बोर्ड्स में भी होता है. आई रिमेंबर आखान बोर्ड के अंदर you are supposed to make a course, ठीक है. I said myself कि आखान कोर्स के अंदर आप लिटरेचर कोर्स भी होता है, ठीक है ना. अब उसका लिटरेचर कोर्स किसी ने बनाया होगा, ठीक है ना. सिंध बोर्ड में भी होता है लिटरेचर कोर्स. तो फिर यू कैन स्टार्ट, जैसे मैंने वो लेवल्स करके स्विच किया था इंटर बोर्ड में, देन आई ऑप्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू. तो उसके बाद तो to be very honest, there are very less teachers in Sindh board for English literature student. I didn't get any kind of English literature student in college, but I had a tutor who उन्होंने मुझे आके सेपरेटली इंग्लिश, जैसे तुमने प्राइवेटली पढ़ा है तो मैंने भी प्राइवेटली लिटरेचर कॉलेज में पढ़ा था. तो मेरा भी यही काइंड ऑफ सिमिलर सीन है कि मुझे ऐसे टीचर्स नहीं मिले, लेकिन मुझे प्राइवेटली इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ा. तो मैंने अपने इंटर बोर्ड में जो है सिंध बोर्ड में भी यू कैन ऑप्ट फॉर, मैं ये बताना चाह रही थी कि यू कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर. बिल्कुल ऐसी ही है आराम से. सो यही बात ना कि अब देखो अपॉर्चुनिटीज़ हैं टीचिंग की भी. सिर्फ ये नहीं कि आप एक स्कूल गए आपने वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है. एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड दैट. यू कैन गो फॉर पब्लिशिंग हाउसेज, यू कैन गो फॉर मार्केटिंग एजेंसीज, यू कैन गो फॉर PR एजेंसीज एंड यू कैन ऑल्सो ऑलवेज गो फॉर कंटेंट राइटिंग का तो है ही, बट इट्स नॉट जस्ट फ्रीलांस वाला कंटेंट राइटिंग नहीं. यू कैन डेवलप नाउ BBO भी होता है कि you feed info to the AI as well, ठीक है ना. you need English, ठीक है, you got that. प्रॉपर प्रॉम्प्ट होगा तो प्रॉपर आंसर आएगा. सही है. फिर अगर हम नेक्स्ट बात पे आएंगे कि अभी तुमने बोला कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा और कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट प्रोसेस करे, वही एक स्टूडेंट प्रोसेस करता हो वो क्वालिटीज़, ताकि वो BS इंग्लिश या लिटरेचर ले एज अ सब्जेक्ट. aside from reading, देखो reading is like first point, second point, third point, reading, ठीक है. and then you get an interest and insight in the development of the art and culture itself, ठीक है ना. you get to learn. ज़रूरी नहीं कि आपके पास पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते. मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने गलती से एडमिशन हो गया, ठीक है. लाइक दे डिड नॉट वांट टू गेट देयर एडमिशन in English, but they ended up having English as their major subject. तो उनका क्या होगा, ठीक है ना. बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, बट यू डोंट हैव टू, ठीक है ना. इफ़ यू देखो हर चीज़ ना मुश्किल लगती है, और हर चीज़ में लगता है, इंग्लिश में लगता है लोगों को स्कोप नहीं है, ठीक है. अगेन वही वाली बात. लेकिन आप उसको आगे, जब आपके पास हिम्मत होगी, जब आप नॉट ओनली हिम्मत, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग पैशनेटली यू विल. मैं ऊपर से बोलूँ यार हमने तो पढ़ लिया, अब मैं क्या करूँ, हम कुछ बट यू एक्सप्लोर, ठीक है. इंग्लिश इज़ डाइवर्स, यू कैन अटैच योर डिग्री टू अदर फील्ड्स. मैं सिर्फ किताबें बैठ के घर में बैठ जाऊँ ना तो इट्स नॉट गोना डू, ठीक है. मैंने तो बुक्स पढ़ी हैं, आई एम जस्ट ओनली गोना रीड बुक्स, दैट्स नॉट हाउ इट इज़. यू रीड बुक्स एंड देन यू अप्लाई इट टू रियल लाइफ, ठीक है ना. हाउ इट इज़ पॉसिबल, लाइक जैसे कि आप जो है डिफरेंट इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, ठीक है ना. आप डिफरेंट उनके साथ जो है ना कोलैबोरेशन कर सकते हैं लोगों के साथ. यू कैन गिव क्रिएटिव आइडियाज़, यू कैन डेवलप क्रिएटिव आर्ट, ठीक है ना. यू कैन उसके बाद आपके पास रीडिंग क्लब्स भी होते हैं, ठीक है ना. आप उसके अंदर जाएँ, आपने ऑनलाइन भी इतने सारे आ गए अब तो, ठीक है ना. यू गेट देयर आर सो मेनी डिस्कॉर्ड पे आपके पास जो है ना वो होते हैं, रीडिंग क्लब्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब
लिटरेचर और इंग्लिश स्टडीज़ के लिए आपके पास वास्ट है. वास्ट है. जैसे यू जस्ट हैव टू रीड एंड यू जस्ट मतलब आप एनालाइज कर रहे हो. और मैंने एक बच्चे का देखा था, उसने कॉलम लिखा हुआ है, मतलब यू रीड बुक्स, आप रिव्यू दे सकते हो. मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप बुक पढ़ के आपको सिर्फ रिव्यू देना होता है. लाइक ये भी एक जॉब है. एक चलो आपके पास कोई, आप एडिटर भी बन सकते हो. सभी तुम पब्लिशिंग हाउस की बात कर रहे थे, वहाँ पे एडिटर्स भी तो होते हैं ना. अब राइटर ने लिखा, वो डायरेक्ट बुक नहीं जाती है कि वो पब्लिश हो गई, नहीं. वो पहले उसके भी स्टेप्स होते हैं. वो पहले एडिटर के पास जाती है, वो पब्लिश होती है, क्या चीज़ आनी है क्या चीज़ नहीं आनी, वो एडिटिंग होती है, फिर वो फाइनलाइज होती है, फिर वो पब्लिश होती है. उसके अलावा यू कैन मेक योर ओन ब्लॉग. ठीक है ना, लोगों को लगता है ब्लॉग इज लाइक अपने फन के लिए करें. यस, यू डू इट फॉर फन, बट यू कैन ऑल्सो जनरेट मनी फ्रॉम दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर. कि अब उसमें वर्किंग फील्ड में क्या है, कुछ पैसे थोड़ी मिलेंगे. लोगों को ये अंदाज़ा होता है इंग्लिश पढ़ के क्या कमाओगे, क्या बनोगे. सिर्फ इसका मतलब है यू डेवलप इट विद योर ओन एनर्जी. You develop it with your own energy. You write blogs, you will one day you can get people, you can write about big publishing. ये कहते हैं कि best sellers and stuff and like that. कुछ ना कुछ आगे जाके हो जाता है. ठीक है ना, it's not limited to that. अगर बंदा कोई चीज़ पैशनेटली करे और उस चीज़ के बाद पैशन हो रहा, यू हैव दैट स्कोप, आपको मिल जाएगी कोई ना कोई जगह. और बहुत सारे, हर डिग्री के पीछे ना कोई जॉब्स होती है, कहाँ से आएंगे. अगर चलो टेक्स्ट बुक भी पब्लिश हो रही है ना, उसके पीछे भी पब्लिशिंग हाउस के अंदर बंदे चाहिए होते हैं. एग्जैक्टली. हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वो भी एडिट होती है, उसके लिए भी तो एडिटर्स चाहिए होंगे ना. सब एडिटर्स सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए एडिटर्स नहीं होते, रिसर्चर्स. हाँ, देयर आर सो मेनी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एज वेल. पाकिस्तान के अलावा भी बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें वहाँ पे रिसर्च के लिए. एंड फॉर द क्या कहते हैं, aside from just research itself, we also study theater itself. ठीक है ना, how theater started, what plays were there, what kind of things, like पूरी इसकी journey, history start से लेके अभी तक की सारी हम पढ़ते हैं उसके अंदर. तो if you're interested into making something, ठीक है ना, into arts, you study that, you can go into theater. I've been to theater आप myself. theater से filming की तरफ भी जा सकते हो. Exactly. और ये भी mass communication से वो kind of क्या कहते हैं उसे, इंटरलिंक्ड है. एग्जैक्टली, यही बात है. एंड जैसा भी आपने बोला कि फिल्म के अंदर भी जा सकते हैं. ठीक है ना, यू ऐसे किस तरह जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने थिएटर पढ़ा, ठीक है ना, आपने बुक्स पढ़ी, सब कुछ पढ़ा आपने, एंड देन यू राइट समथिंग. ठीक है, यू कैन गेट इनटू प्रोडक्शन हाउस. ठीक है ना, प्रोडक्शन हाउस के जाके आप कोलैब कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं. उनके साथ आप अब राइटर है, ठीक है ना, राइटर को सब एडिटर भी चाहिए होता है. आपको साथ में क्या कहते हैं, डायरेक्टर के साथ आप काम कर सकते हैं. बिकॉज हाउ आप डायरेक्टर के साथ जो है ना, उनको आर्टिस्टिक आइडियाज़ भी दे सकते हैं. ठीक है, आप लिटरेरी टर्म्स दे सकते हैं उनको. फॉर एग्जांपल, अब क्या कहते हैं, कराची में भी इतने सारे प्लेस होते हैं. ठीक है, आप उसमें न जाओ, वहाँ से आप शॉर्ट फिल्म्स में जाओ. ठीक है, हमारे पास वीएस की डिपार्टमेंट भी है. ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज़ का. वहाँ पे वो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं लोग, अपने स्टूडेंट अपने थीसिस के लिए बनाते हैं. ठीक है ना, वहाँ पे भी आप उनके साथ काम कर सकते हैं. यू कैन पिच देम स्टोरी आइडियाज़, यू कैन राइट अ सिनॉप्सिस एंड गिव टू देम, और फिर वो कर सकते हैं. अभी तो इतना वैसे भी काम हो रहा है. अभी जो शोज़ हैं, ठीक है, यू राइट, मेक शॉर्ट फिल्म एंड स्टफ, एंड यू गेट इट ऑल ऑनलाइन एंड स्टफ. यू कैन पब्लिश, पोस्ट देम, शेयर देम. तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट एज वेल. फिर उसके अलावा कि अब जैसे बहुत सारे जो है ना लिटरेचर फेस्टिवल्स भी होते हैं, उनमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को. तो एज अ लिटरेचर स्टूडेंट वो भी लिटरेचर फेस्टिवल्स भी अटेंड करना चाहिए, ताकि हाँ, बिल्कुल करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली सबसे बड़ा जो कराची में जो लिटरेचर फेस्टिवल होता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. ठीक है ना, OUP. एंड मैंने उनके साथ भी थोड़ी लास्ट ईयर जो हुआ था, उनके साथ मैंने काम किया था. आई अप्लाइड देयर फॉर इंटर्नशिप. ठीक है, मैंने ऐसे ही किसी सम दिसंबर आई वॉज नोटिफाइड कि वो दे आर हायरिंग फॉर इंटर्नशिप्स. ठीक है ना, एंड we should apply it. And me being me, I was like, publishing house hai, let's go for it. It was for a marketing team. ठीक है ना, अच्छा, people would be like a marketing team and literature का क्या connection है. So that also explains here as well. मैंने ऐसे अप्लाई किया, एंड वन डे, एक महीना गुजर गया, लाइक जब उनकी कॉल्स की जब टाइम आए, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, एंड आई वाज लाइक, दे वर लाइक, ओके, यू जॉइन अस फॉर द इंटरव्यू इन सच एंड सच डेज. आई वाज लाइक, ओके, लेट्स गो. ठीक है, ट्राई करते हैं क्या है.
So I went there, and after doing the interview they were like, okay, when are you free, let's, and like, अच्छा start कब है. अच्छा मज़े की बात ये कि उस time I had to go for my national trip, ठीक है ना. तो I wasn't confirmed for either of that, ठीक है. मुझे था कि मैं कौन सा चूज़ करूँ फिर. तो बिकॉज नेशनल्स में भी मेरी अपॉर्चुनिटी वाज लाइक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो आई हैड टू गो देयर. बट OUP में भी इंटर्नशिप के लिए आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड. तो कराची जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसके अंदर मैंने ये क्या किया, एंड मैंने कहा अच्छा आपकी स्टार्ट कब हो रही है. दे वर लाइक इफ़ यू आर अवेलेबल टमोरो वी कैन स्टार्ट टमोरो. आई एम लाइक अच्छा. बट देन आई टोल्ड देम कि आई माइट बी गोइंग टू गिलगित फॉर माई नेशनल्स, ठीक है ना. तो उसके लिए हम let's see if I'm back, and if you still time hota तो फिर I can join them. So they're like, okay, when you're back do let us know and we will see, ठीक है ना. And then I went to Gilgit, and then when I came back and उन्होंने फिर बात की, they called me again and they contacted me, and after that उसमें उन्होंने बोला कि आप we still want you on your team, if you cannot join us as an intern, join us as a volunteer, ठीक है ना. I was like अच्छा क्या है. तो मैंने कहा अच्छा वॉल्टियर की ना KLF में बहुत सारे लोग होते हैं, देयर आर लाइक अशर्स, देयर आर लाइक स्टफ, है ना. मैंने कहा मैं नॉर्मल वॉल्टियर में नहीं जाना चाह रही. इफ़ यू वांट मी एज अ वॉल्टियर, आई वांट एज द मेन हेड टीम, मार्केटिंग हेड टीम. तो लाइक ओके जॉइन अस प्लीज़. तो फिर मैंने उनको अगले दिन मैंने ज्वाइन किया उनको, और हमें सारी जो वहाँ पे उनके साथ सारा मैंने किया. अच्छा अब मार्केटिंग का क्या है, यू लर्न अ लॉट अबाउट, फर्स्ट आपको एक्सपोजर मिलता है अबाउट द, यू गेट टू सी न्यू ऑथर्स, ठीक है, राइजिंग ऑथर्स एज वेल, ठीक है, उनकी जो कंटेंट होता है, एंड यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. वहाँ पे US एम्बेसी से भी लोग आए हुए होते हैं, ठीक है. आप वहाँ के साथ इफ़ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, ठीक है ना, इंग्लिश स्टूडेंट, आप US एम्बेसी में काम कर सकते हैं. एम्बेसीज़ के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फॉर पीपल हु आर हैव स्टडिंग लैंग्वेजेस. या एग्जैक्टली. आई वांट टू आस्क कि तुमने किस तरीके से इंटर्नशिप वहाँ पे, किस तरीके से तुम्हें पता चला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में इंटर्नशिप आई हुई थी. अच्छा ये मुझे पता चला फ्रॉम माय प्रोफेसर, ठीक है. दे वो तो वेबसाइट होती है जहाँ पता चलता है, या उनके पास दे डेफिनेटली हैव द वेबसाइट. देखिए लिंक्डइन पे आ जाता है, लिंक्डइन के ऊपर आप उनको फॉलो करें ऑक्सफोर्ड को, ठीक है, यू गेट दैट. एंड आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रही होती हैं, ठीक है. यू फॉलो दोज पेजेस एंड यू गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट एज वेल, ठीक है. इंटर्नशिप. हाँ, एंड नॉट ओनली दैट, द रीज़न ऑल्सो आई मैंशन माई प्रोफेसर स्पेसिफिकली was because के the teachers at my department are also very cooperative and supportive in such stuff, so they are also giving us information. ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो सही भी है. फिर अभी तुम बात करी थी एम्बेसीज में, अगर आप यू आर यू नो स्टडिंग लैंग्वेजेस तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एंड यू योर सेल्फ इज़ अ मल्टीलिंगुअल पर्सन, तो वो तुम्हें कितना यू नो हेल्प करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में. यार देखो I myself Indonesian Pakistani, ठीक है ना. तो I have experienced a lot of socio culture events and organizations के साथ जो सारे events होते हैं मैंने बहुत किए भी हैं, पार्ट भी लिए हैं. सो उसके हिसाब से it all builds up in your CV, ठीक है ना, once you have the experience. तो फिर इसके बाद जो है, and then for example I remember when I was in school I was studying German. Currently I can speak more than four, like I can speak English, Urdu and Indonesian, which is my mother tongue, and German. I learned a bit of Chinese as well when I was in college, and yeah, that's about it, ठीक है ना. And other than that, what I remember from my school is when I was studying in my school, I learned German when I was in school, but it was also affiliated with Goethe Institute as well. So yeah, we had this culture event where we called it like German Fest, ठीक है, and we had a whole timeline of Germany, ठीक है ना, कि क्या हुआ था, वो क्या क्या events थे Germany के, and we had like a singing German singing, we were singing, I sang a German singing a song, you know, when I in with the and embassies were
देयर, जर्मन कॉन्सुलेट की तरफ से लोग आए थे वहाँ पे. सो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आपको एक कल्चर एक्सपोजर होता है. ठीक हर है, तरीके का exposure एग्जैक्टली. मिलता है. मेरा अपना इंडोनेशियन कॉन्सुलेट के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस. इट्स लाइक इंडोनेशियन कॉन्सुलेट के साथ मेरे इतने हैं कि लाइक इट्स लाइक मेरा अपना ननियाल है यहाँ पे. ठीक है ना, इट्स लाइक दैट. तो मैं अपना ननियाल ही कहती हूँ उसको अपना. मेरे अपने ही वो लोग हैं वहाँ पे. वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हेयर एज वेल. उनकी तरफ से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. उनकी वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स इतने सारे होते हैं. ठीक है ना, क्या कहते हैं, कॉन्सुलेट में ही होते हैं, बाहर की भी. लाइक सो यू आर getting yourself exposed to culture itself. ठीक है, एंड लिटरेचर के थ्रू व्हेन यू आर यू फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ना कि लैंग्वेजेस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. ठीक है, you have studied German. Okay, once you have studied, you get an opportunity to study in Germany itself. ठीक है, जर्मनी में आपको इंग्लिश में कोई बात नहीं करेगा. they won't even reply you in English. ठीक है ना, for unless like the point is कि हम यहाँ पे उर्दू में बात करते हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं. जर्मनी में is all like They own their language, which I believe we should also. But जर्मनी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. यू कैन इफ़ यू कैन लर्न देयर लैंग्वेज, अ लॉट ऑफ देयर थिंग्स आर लाइक फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड स्टफ. यू कैन ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप्स तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा मिलती हैं. यू कैन डेफिनेटली सर्च अप टू दिस वेबसाइट DAAD डार्ट के नाम से. ठीक है, यू कैन गो देयर. इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, यू कैन गो टू गोएथे इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. ठीक है ना, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं. सो इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी थी. लैंग्वेजेस सीखने का मकसद सिर्फ I learned it from my own passion. I love learning. तो लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं. यू कैन गो फॉर ट्रांसलेटिंग. ठीक है ना, देयर आर मैनी ट्रांसलेटिंग जॉब्स अहेड अब्रॉड भी, बहुत सारी चीज़ें. यू कैन टीच लैंग्वेजेस. ठीक है ना, एंड इट्स एज अ डिफरेंट जब एम्बेसडर्स आते हैं तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी होता है. एग्जैक्टली, यू कैन वर्क एज अ ट्रांसलेटर. यू कैन वर्क इन UN. कम ऑन. यस. उसके अलावा जैसे अब तो हमारी सारी बातें हो गई हैं, फिर अब नेक्स्ट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो तुम्हें स्पोर्ट्स की तरफ तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है, उसके बारे में बताओ. Well, I have been doing sports ever since I was very small, young. ठीक है ना, I started my skating, rollerblading when I was in 4th grade. और उसके अंदर भी I was excelling like a lot better than all of my students, class fellows as well. Because मतलब ऐसा था कि like there's girls team and there's boys team, right? So मुझे हम लोग रेस करते थे. ठीक है ना, मैं जो कोच जो थे मेरे, he used to take me to the boys team because मेरी लेवल जो गर्ल्स टीम की थी उससे नहीं थी, मेरी उनकी लेवल की होती थी. तो मुझे उनसे कम्पीट कराते थे वो. तो खैर मेरा वहाँ से मैंने रोलर ब्लेडिंग स्टार्ट की. ठीक है ना, मैंने खुद भी करनी शुरू की. मेरा खुद भी पैशन बढ़ा. ठीक है, मैं कराची में बहुत सारे रिंग्स थे. ठीक है ना, मैं वहाँ जाती थी और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी. आई ऑल्सो स्टार्टेड टेक्वांडो, जिमनास्टिक्स मैंने किया. ठीक है ना, एंड मैंने टेक्वांडो में अंडर 16, बिफोर आई वाज 16, अंडर 16 की मेरी ब्लैक बेल्ट हो गई थी. So that is also something I achieved. And aside from that, abhi recently I went to Gilgit for my national winter sports. ठीक है ना, and I was part of the SIN team, which was the first SIN team of the whole जो nationals के अंदर पहली girls team गई थी. उसके अंदर मैं part थी, and I won a gold medal in ice figure skating. And that was a huge achievement for me. And aside from that, I also won silver medal in ice relay, and it was a very big achievement for not only me but for the SIN team as well, because SIN team pehli dafa gayi. We had no experience of the extreme cold. We were living there in around -25, -0 में हम लोग इधर उधर चले जाते हैं. और -25 के अंदर आप रोज़ हाइक करते हो. आप रोज़ हाइक करके वहाँ पे आप नहीं चेंज करते हो शूज़. ठीक है, वहाँ पे आपके हाथ वैसे ही बहुत ठंडे हो रहे होते हैं. एंड यू डू स्पोर्ट्स. ठीक है ना, एंड वहाँ से वापस आओ, हाइक करके नीचे आओ, यू गो फॉर योर लंच एंड स्टफ, एंड देन यू गो बैक टू योर रूम. मतलब बहुत इट्स अ टफ रूटीन. इट्स नॉट कि आप बस वहाँ पे गए, आपने वहाँ चिल किया, पिक्चर्स ली, हम वेकेशन पे जा रहे हैं. दैट्स नॉट दैट. इट्स अ वेरी टफ रूटीन. तो मेरा वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था. अभी 2023 की बात है ये. When I went to the national games or winter sports games in Gilgit, Nalsar Valley में, वहाँ पे I went there for
एज अ आइस हॉकी टीम, ठीक है ना. एंड वी ऑल्सो कम्पीटेड देयर इन आइस कर्लिंग. आइस कर्लिंग का दूसरा गेम होता है, उसके ना बहुत हैवी वेट्स होते हैं, राउंड हैवी वेट्स होते हैं, वो आप ना यूँ करके स्लाइड करते हैं, जैसे हम बॉलिंग करते हैं बट हम बॉलिंग ऊपर से करते हैं, ठीक है ना. वो स्लाइड करते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करके करते हैं, एंड यू हैव टू रीच अ टारगेट. तो वो दैट वाज न्यू गेम इंट्रोड्यूस टू अस, तो हमने वो भी किया. एंड देन वी डिड आइस रिले, and I was the only representative of the Sin team as well, and I won the gold in ice figure skating. And ice figure skating is something that I've been dreaming to do ever since I was a kid, when I started rollerblading. And मज़े की बात ये है कि it was my first time on ice as an ice skater. वाओ, Yeah. दैट्स सो नाइस. तो अगर किसी को आइस स्केटिंग सीखनी होगी तो वो क्या क्या, कौन से क्लब्स हैं या क्या अथॉरिटीज़ हैं या किस साइट पे वो जाएगा ये सब सीखने के लिए? अच्छा, जो लेके हमारे से यहाँ से जाते हैं ना आइस स्केटिंग के लिए, दे आर रोलर ब्लेडर्स, जो हमारे जो ना क्लब है उनके जाते हैं. अच्छा, ये जो है ना, जिनको रोलर ब्लेडिंग आती है ना, उनको आइस स्केटिंग 5 मिनट में आ जाएगी. इतनी पहले मुझे भी होता है यार, मैंने कभी की नहीं है तो क्या होगा, तो कैसे होगा, ठीक है ना. आई वाज लाइक, मुझे बताया कि इफ़ यू कैन डू दैट, मैं लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग, विद इन 2 मिनट्स आई वाज रनिंग अराउंड द होल रिंग, ठीक है ना. इतना मज़े का था. एंड यहाँ पे जो एज़ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, यहाँ पे बहादुराबाद में, नाज़िमाबाद में वो हैं, क्लब्स हैं रोलर ब्लेडिंग के, ठीक है ना. बहादुराबाद में 200 रेस्टोरेंट के पीछे है, नाज़िमाबाद में मुझे ना स्केटिंग ग्राउंड है, वहाँ पे है, ठीक है. क्लब का नाम अगर इफ़ यू रिमेंबर? क्लब के नाम सब उसको सिर्फ क्या कहते हैं, रोलर ब्लेडिंग क्लब्स के नाम से ऐसे जानते हैं, ठीक है ना. सही. टीचर्स के नाम जानते हैं. मेरे जो कोच थे वो सर ताहिर हैं, ठीक है ना. एंड मैंने उन्हीं से सब कुछ बचपन में भी उनसे सीखा. उन्होंने ही मुझे उसके लिए अप्रोच किया था कि यू कैन बी पार्ट ऑफ द टीम. उन्होंने फिर मेरी लाइक स्किल्स वगैरह टेस्ट की और फिर हम लोग वहाँ पे गए, ये हुआ. तो आइस स्केटिंग में भी डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं, गेम्स होते हैं. बिल्कुल ऐसे जैसे रिले अलग है और फिगर आइस स्केटिंग अलग है. फिगर तो लाइक आपने देखा होगा फिगर स्केटिंग वीडियोस जो पूरे डांस होता है, तो वो इट्स लाइक यू डू ट्रिक्स एंड स्टेप्स इन दैट, एंड वो हमने वो किया. मैंने देखी है. मज़े की बात ये है कि आई रिमेंबर आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज अ लॉट, ठीक है ना. जब राइटिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, तो फिर मैंने काफ़ी साल पहले एक पूरी आइस स्केटिंग का पूरा डांस ना, एक सिनेरियो जो है ना प्रॉपर एक स्टोरी में लिखा था. एंड जब मेरे पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग, वही हो रहा है मेरे साथ. तो मैंने उसी को एक सर्टेन सॉन्ग जो मैंने लिखते वक्त जो मेरे दिमाग में था, उन्होंने कहा हमारे पास अब वो था कि आपको इसे अपने पसंद का सॉन्ग कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं. तो आई चोज अ सॉन्ग एंड मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस की. रिंग में मैंने प्रॉपर अपना ड्रेस जो है ना डिसाइड किया हुआ था उस डे के लिए, एंड वो मैंने परफॉर्म किया एंड आई वन दैट. वो हो गया ना, फिक्शंस बिकमिंग रियलिटी वाला सीन हो गया. बिल्कुल. चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और एनी एंडिंग रिमार्क्स एज अ स्टूडेंट? As a student, yeah, as a student to other students as well, ठीक है ना. As a student to student, and especially if you are going to start your university, yeah, just doing your university assignments and lectures is not enough, ठीक है ना. whichever field you are in, ठीक है ना, you need to get your hands on life experiences as well, ठीक है. and it's a great thing about KU के KU के अंदर you get exposure, a lot of exposure. You have different kind of people, you have different kind of communities, you have societies and stuff. बहुत होता है, ठीक है ना. आप सिर्फ घर से जाओगे and you can go to your class and you're gonna come back, उतना you don't get that experience, ठीक है. you get experience through interacting with students. हमने एक दूसरे को कैसे ज्वाइन किया, we got to know each other, we connected to each other, right? That's how we did, ठीक है ना. you are having a lifetime experience here, ठीक है ना. एंड इट्स सिर्फ एक्सपीरियंस जो है ना, सिर्फ इट्स नॉट जस्ट कि आपका टाइम जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. इट इज़ गोना अफेक्ट यू इन योर CV, इन योर करियर इज लॉन्ग टर्म गोल्स भी आपके काम आएंगे ये. सो एज अ स्टूडेंट यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर योर co-curricular activities, योर fun time activities should also be मतलब meaningful and stuff. So yeah, you should definitely try new things. थैंक यू सो मच. ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू. इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.